अ, थोड़ा-सा समय आप सभी को और चाहूँगी, जब तक कि बाकी के लोग जुड़ नहीं जाते, तो आप सभी लोग थोड़ा धैर्य बनाए रखिएगा। बस 2-3 मिनट और वेट कर लेते हैं, उसके बाद में आज का पैनल डिस्कशन हम सभी लोग स्टार्ट करेंगे। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि ड्यूरिंग पैनल डिस्कशन आप अपने वीडियोस जो के Yes, good evening, Dr. Giri, and good evening, everyone.
Uh, am I audible, sir? Yes. Hemant, sir? Maybe it due to the network issue. हम्म, एक बार और रिपीट कर देती हूँ एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ हेमंत सर कि ड्यूरिंग पैनल डिस्कशन हम सभी अपने वीडियोस जरूर ऑन रखेंगे ताकि हमारा पैनल डिस्कशन इफेक्टिव हो जाए। एक छोटी सी इफ पॉसिबल प्लीज कनेक्ट विथ योर वीडियोस। स्टार्ट कर सकते हैं, ओके बाकी लोग जुड़ते रहिए। ओके। Good evening, all the respected dignitaries, esteemed professor, industry expert, researcher, and fellow member of academy. On the behalf of organizing committee, I welcome you all for the panel discussion, which is focused on the pharmaceutical chemistry. And we have very experienced person in this panel discussion. I like to introduce Dr. Hemant Jain, Director University, Department of Farm Sciences, MGM University, Chhatrapati Sambhaji Maharaj Nagar, Maharashtra. सर को 27 से 28 साल हो रहे हैं इस प्रोफेशन में, तो सर हम लोग के साथ में हैं, तो आई थिंक कि ये पैनल डिस्कशन बहुत ही पॉजिटिव रहने वाला है और इसमें से जो भी निष्कर्ष निकलेगा, जो भी कंक्लूजन निकलेगा, वो हमारे फार्मेसी प्रोफेशन के लिए कहीं ना कहीं यूजफुल होने वाला है। गुड इवनिंग सर। नीलकंठ सर, इट्स ओवर टू यू। Yes, thank you. In this formal introductory talk, I just want to introduce a few members also who are here with us in this third day of panel discussion. And this panel discussion is organized as per demand of PCI. PCI has called us as a public, as a stakeholders to go through the syllabus which they have drafted, and we all are ready to contribute in this noble work for the reconstitution of the syllabus. So we have tried to request faculty members of different streams to collect together to exercise on the syllabus and get some positive feedbacks on the syllabus. And firstly, we have started from pharmacology first day. Then yesterday we have talked on pharmaceutical subject, and today it's third day, and we are going to discuss on pharmaceutical chemistry, and then we will carry forward tomorrow on pharmacognosy, then AI and other subjects day after tomorrow. And finally, we will conclude with the experts of Pharmacy Council of India who have drafted the syllabus. This 6 days panel discussion will be concluded. So we have some other experienced faculties and the co-organizers. I just want to introduce Dr. Ishwar Chandgiri. He is a CEC member of Association of Pharmaceutical Teachers of India, APTI, and ex-president of APTI Uttar pradesh. And he is currently serving as president of teachers wing of United Pharmacist Welfare Association, UWPA, and working as principal in White Feathers College of Pharmacy, Barabanki, Uttar Pradesh. Along with him, I don't know most of the senior faculties personally, but one of them is Professor Saten Singh from BPS College, ETA. He is also senior most and his expertise in pharmaceutical chemistry. So not taking too much time, I just want to introduce the subject and then we will go ahead. जो भी आप लोगों ने सिलेबस अभी तक रिव्यू किया होगा केमिस्ट्री का, हम सभी एक एक करके अपने व्यूज उस केमिस्ट्री के सब्जेक्ट्स पर रखेंगे. केवल केमिस्ट्री पर ही फोकस्ड है आज का, ऑल्दो अगर आप और दूसरे सब्जेक्ट से भी कुछ अपनी तरफ से ऐड करना चाहते हो तो यू हैव टाइम टू ऐड. And at last, we have the senior most faculty, senior most mentor with us. जैसा अभी Mrs. Deepika ने introduce किया,
प्रोफेसर हेमंत जैन सर, एंड आई रिक्वेस्ट प्रोफेसर हेमंत जैन की सबसे आखिरी में उनके एक्सपर्ट कमेंट्स और ओवरऑल डिस्कशंस का कंक्लूडिंग रिमार्क उनसे हम लोग लेंगे, एंड देन वी विल वाइंड अप दिस सेशन. सो एज ऑफ नाउ जो सिलेबस ड्राफ्ट सिलेबस है उसमें स्टार्टिंग फ्रॉम सेमेस्टर 1 फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का कुछ सब्जेक्ट हमने सबने देखा होगा, कुछ सब्जेक्ट कम किए गए, कुछ नए ऐड किए गए. जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में फार्मास्यूटिकल एनालिसिस और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 2 सब्जेक्ट्स हुआ करते थे, अभी दोनों को मर्ज करके एक सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर में हो जा रहा है, दैट इज फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री. देन सेकेंड सेमेस्टर में वी हैव बायोकेमिस्ट्री. Then third semester में heterocyclic compounds and stereochemistry. Fourth semester में medicinal chemistry, which was earlier 2 to 3 semesters, but it is concised in only 4th semester in the syllabus. Then in semester 5 we have pharmaceutical analysis, which was earlier in first sem and then repeated in 7th sem as a advanced version of pharmaceutical analysis, but it is here in unit semester 5. And then we have in semester 7 is modern analytical techniques. Apart from this, we have in this draft syllabus some minor subjects on pharmaceutical chemistry as pharmaceutical organic chemistry in semester 2. तो ये तो वो सब्जेक्ट हैं जो हमें स्टूडेंट्स को पढ़ाने हैं इस ड्राफ्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग एज कोर सब्जेक्ट्स, बट अपार्ट फ्रॉम दिस सम इलेक्टिव सब्जेक्ट्स आर आल्सो देयर. मुझे लगता है आप सबने देखे होंगे, उसमें कुछ स्किल बेस्ड कोर्सेज हैं, कुछ वैल्यू एडेड कोर्सेज हैं. वैल्यू एडेड कोर्सेज में क्यूबीडी है, फ्यूचरिस्टिक फार्मा अप्रोचेज है, एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन, कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन जो कि स्टैटिक्स वाले भी लेते हैं. ग्रीन केमिस्ट्री इज अ न्यू टॉपिक व्हिच इज एडेड. पहले सिलेबस में बहुत छोटा सा पार्ट हुआ करता था, अभी उसको एज अ सब्जेक्ट एज इलेक्टिव सब्जेक्ट ऐड किया है. ऐसे कुछ और भी ऐसे मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स हैं जो इलेक्टिव्स में हैं. अब आप सब एक्सपर्ट्स हैं, एक एक करके अपने व्यूज जो आपने रिव्यू किया हो वॉलंटरली रिक्वेस्ट की जो भी अपना व्यू रखना चाहते हो सिलेबस पे, और अपने कमेंट्स की हम कैसा चाहते हैं ये सिलेबस कैसा हो, क्योंकि पीसीआई ने जिम्मेदारी हम स्टेक होल्डर्स को दी है, तो हम सब वॉलंटरली इसमें पार्टिसिपेट करें. तो आई रिक्वेस्ट वन बाय वन. एंड आई जस्ट वांट टू रिमाइंड कि जो भी डिस्कशन का हमारा कंक्लूजन है, आई एम नोटिंग इट डाउन कि क्या क्या बातें आई. लेटर वी विल शेयर अ गूगल फॉर्म एंड वी विल कंसाइज द रिजल्ट्स. जो भी आपके कमेंट्स उसको आप पॉइंट वाइज हम लेंगे और थोड़ा सा ब्रीफली लेंगे. देन वी विल समराइज इट एज अ ड्राफ्ट ऑफ कमेंट एंड वी विल सर्कुलेट टू यू ऑल जो भी पार्टिसिपेट कर रहे थे इन डिस्कशंस में. जैसे आज भी 11-12 पार्टिसिपेंट्स हैं, कल के डिस्कशन में 15-16 पार्टिसिपेंट्स थे, ऐसे उससे पहले वाले में लगभग 11-12 थे. तो जो भी इंटरेस्टेड हैं उस ड्राफ्ट में मॉडिफिकेशन के लिए और कमेंट्स दे रहे हैं, उनके सारे कमेंट्स हम लोग ड्राफ्ट करके वापस आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने डिजिटल सिग्नेचर के साथ उसको हमें भेजेंगे. और आप सब बीइंग डायरेक्टर्स, प्रिंसिपल्स या एज फैकल्टी अपनी मेल से भी काउंसिल को भेजें. फिर हम लोग भी कुछ एसोसिएशंस की के साथ उनके लेटर हेड्स पे भी शेयर करेंगे एक कलेक्टिव ड्राफ्ट of collective comments on this draft syllabus. So shall I start? Yes, please, sir. Nilkant sir, good evening everybody. I'm Professor Satyendra Singh. Sir, I have few suggestions for pharmaceutical inorganic chemistry. Sir. Actually, it is a very important subject in which we taught a student about the inorganic compounds, which are in our daily basis we use a lot. And might be possible they are very popular in previous time. If we look at 30-40 year back, the most popular inorganic compounds were most popular. Now things are that organic compounds has taken the edge over the inorganic compounds. So few things that I want to add in this, that adsorbent must be added in the syllabus, because in diploma syllabus previously diploma syllabus was taught. Recent diploma syllabus actually for both in inorganic and organic chemistry has been merged. So I just want a suggestion that adsorbent should be added, included in this topic. Because when a patient is coming in most of the hospital in Uttar Pradesh, pharmacists are working in emergency section.
So when a patient which is having a poisonous case, so if he or she is conscious, so we can administer adsorbents, so they can protect the patient for the absorption of this poisonous substances. So absorbents should be added in this syllabus. This is my own opinion. This must be added. This is for organic chemistry. Over to you, Neelkant, sir. Okay. So this was the part of first semester, pharmaceutical inorganic chemistry. Yeah. Inorganic chemistry. So Adsorbents. one more issue is there, that analytical chemistry is also added with it. Yeah. Little So- bit it so is जितना, added, हाँ, and it कई the सारे student topics had to हैं, study in 3 semesters. Analysis they had to study in 3 semesters. But there is no need for that one. If they are planning to do it in first year, whether omit the analysis part, and that in that part, that analysis they had put in 5th semester, that is okay. When the student read it in 5th semester, then he or she can go thoroughly. And then the advanced version that they have renamed that modern analytical technique. So that for advancement, student can learn from there. So if it is better, if we only, it should be pharmaceutical inorganic chemistry. It should not be a part of there is no need to teach limit test and all these things in analysis as well as in chemistry. In a single subject, they can be there. Okay, So this is my suggestion. जी एनालिसिस यदि थोड़ा सा सेपरेट कर दिया जाए तो वो ठीक रहेगा, क्योंकि एनालिटिकल पार्ट जो है जब हम देखते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, और मेन इंपॉर्टेंट रोल जो शुरू होता है वो 5th सेमेस्टर के बाद बच्चे को समझ में आती है। फर्स्ट सेमेस्टर में तो मेरे हिसाब से इनऑर्गेनिक जो सिलेबस ड्राफ्ट किया है, बहुत अच्छा ड्राफ्ट किया उन्होंने जनरल फार्मेसी और उसको करके, तो वो ठीक है। उसमें मेरा ये सजेशन है कि यदि एनालिसिस इनको देना है, जिससे कि बच्चा, क्योंकि इंडस्ट्री में दे आर मोर डिमांडिंग, एनालिटिकल सब्जेक्ट्स आर मोर डिमांडिंग, तो उसमें जो है मेरा ये सजेशन है कि एनालिसिस 5th सेमेस्टर में जो इन्होंने सब्जेक्ट डाला है, अभी सिलेबस जो ड्राफ्ट किया है उसी में रहने दिया जाए तो ठीक है। So one more subject is there, biomedical chemistry. जो मेडिसिनल केमिस्ट्री था, अभी उसको 2 पार्ट्स में कराया। अभी सेमेस्टर 4 में मेडिसिनल केमिस्ट्री और सेमेस्टर 5 में बायोमेडिकल केमिस्ट्री। तो सर वो तो ठीक है, उसमें ठीक है, करीब करीब जो है बायोमेडिकल केमिस्ट्री एक्चुअली वही रिसेप्टर और उन सब के बारे में बताया गया, ठीक है, वो सारी चीजें ठीक है। बाकी तो ठीक है मेरे हिसाब से। बाकी मैंने थॉरली स्टडी किया, बायोमेडिकल केमिस्ट्री में वही चीज है, बस नाम बदल दिया है। मेडिसिनल केमिस्ट्री को जो है 3 बार 4 बार रिपीट ना करके, जैसे पहले हम लोग के समय पे जो है मेडिसिनल केमिस्ट्री 2 साल चलता था, 3rd ईयर और 4th ईयर। तो पहले में 2 साल पढ़ा है। एक चीज मैंने और ऑब्जर्व किया, उसमें हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री जो सब्जेक्ट सेमेस्टर 3 में है, इसमें जो इन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं जो कि एज ड्रग्स यूज हो रहे हैं, उनका भी स्टडी वहीं पर मेंशन किया हुआ है सब्जेक्ट्स में। तो ये भी अच्छा एक प्रैक्टिकल अप्रोच बढ़ेगा, स्टूडेंट्स रिलेट, प्रैक्टिकल अप्रोच सही है, वो सही किया है कि उसको सीधे स्टूडेंट जो स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, वो सीधे रिलेट कर सकेंगे कि हमारी ड्रग फॉर्म में कैसे यूज हो रहा है। ये एक अच्छा मॉडिफिकेशन किया है। हाँ, ये अच्छा किया है जी। और फैकल्टी मेंबर्स और कोई कुछ कमेंट्स ऐड करना चाहेंगे जो भी हमारे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सब्जेक्ट से रिलेटेड है? फर्स्ट सेमेस्टर टू 8th सेमेस्टर इंक्लूडिंग मेजर, माइनर, वैल्यू एडेड, स्किल बेस्ड, इलेक्टिव सब्जेक्ट्स। इलेक्टिव में जैसे इन्होंने हॉस्पिटल ट्रेनिंग को भी रखा है, जो 45 आवर्स का है ट्रेनिंग हॉस्पिटल। इलेक्टिव में नहीं है सर वो, सॉरी, इसमें जो है ट्रेनिंग में, ट्रेनिंग पार्ट, ट्रेनिंग के 2 पार्ट्स। जी। तो उसमें भी थोड़ा सा ये है कि हॉस्पिटल अभी जैसे फार्माको विजिलेंस पे ज्यादा फोकस रहे तो ज्यादा ठीक रहेगा। क्योंकि अभी क्या है, जो डिमांडिंग इंडस्ट्री है वो फार्माको विजिलेंस है। तो मेरे हिसाब से हमें उसी तरीके से जो है ड्राफ्ट, उसी तरीके से चीजों को करना होगा। कल और परसों के डिस्कशन में हॉस्पिटल ट्रेनिंग पे काफी डिस्कशन हुआ फार्माकोलॉजी के जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट से। तो मेरी उसके बाद बात हुई जो हमारे प्रदेश यूपी स्टेट के पहले चेयरमैन थे फार्मेसी काउंसिल के, सुनील यादव जी।
तो जी उनसे जी जी बात जी। हुई तो उन्होंने ट्रेनिंग के बारे में सजेशंस मांगे थे, तो वो बात हो रही थी, तो मैंने अपनी तरफ से उनसे ये रिक्वेस्ट करी कि स्टूडेंट्स तो हम लोग भेज देते हैं ट्रेनिंग के लिए, लेकिन वो ट्रेनिंग करके वापस आता है खाली सर्टिफिकेट लेके, उसको फिर भी नहीं पता होता है कि हाँ इंजेक्शन का एंगल क्या होना है, कि गॉज क्या है और वीगो सेट क्या होता है। तो इसलिए ट्रेनिंग को कहीं ना कहीं आप रिपोर्ट भी वहीं पर बनवाइए और स्टूडेंट को स्क्रीन करने के बाद हमारे पास भेजिए, तब हम सर्टिफिकेट साइन करेंगे। तो कहने लगे ये तो बड़ा मुश्किल काम है, तो टीचर्स का काम, हमारे यहाँ टीचर्स नहीं होते। तो हमने कहा तो फिर क्या करना चाहिए, उसका सजेशन उनकी तरफ से फीडबैक लिया। तो उनका कहना था कि हाँ। सर इतना ज्यादा नंबर में स्टूडेंट्स आ रहे हैं, ये अभी तो बस जल्दी जल्दी उनको 30 दिन की जगह 45 दिन की जगह 15 दिन में भगाने की तैयारी कर रहे हैं वो। हाँ हाँ हाँ। हाँ, नहीं, तो अभी चक्कर वो क्या है, जैसे मान लिया ये थोड़ा सा इसमें जो है ना, इसमें एक काम होगा एक्चुअली, मैक्सिमम जैसे फार्मेसी कॉलेज हैं तो वो शिफ्ट किए नर्सिंग कॉलेज की तरफ, मैक्सिमम, और जो ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पास खुद के हॉस्पिटल्स हैं। अब जैसे हमारे यहाँ पे जो है हॉस्पिटल है, 150 बेडेड हॉस्पिटल है, पिछले साल ही शुरू हुआ है। तो उसमें हमने देखा है कि चीजें हमने अपने यहाँ पे कराई हैं, चीजें तो बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें ये हो सकता है कि जिन जिन इंस्टीट्यूट के पास अपने स्वयं के हॉस्पिटल हैं ग्रुप के पास, तो वो अपने यहाँ पे कराएं तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से हो सकती हैं। हाँ, तो हमारा स्टूडेंट कम फर्स्ट से कम वो टाइम सीख था सके। और हमारे लिए भी, हाँ, हमारे यहाँ जो है बच्चे सब कुछ सीख रहे हैं। ठीक है, एक हमने भी इनिशिएट लिया, थोड़ा सा पेन तो लेना पड़ा, फैकल्टी ने भी पेन लिया, हमने भी पेन लिया। और उनकी ड्यूटी शिफ्टिंग, एक्चुअली जैसे हम कहते हैं कि नर्सिंग स्टाफ जो है फार्मासिस्ट की नौकरी खा गया, एक्चुअली खाया नहीं, वो हमने स्वयं में दी। हम जो है कहीं ना कहीं हम इंडस्ट्री और हॉस्पिटल क्लिनिकल्स पे हम ओरिएंटेड ही नहीं थे। अभी मैं नर्सिंग का सिस्टम देख रहा हूँ, तो एक्चुअली मेरा भाई भी जो है नर्सिंग किया हुआ है, तो अच्छा। मैंने देखा था उनका ड्यूटी सिस्टम बड़ा जो है बड़ा बहुत सिस्टमेटिक रहता था। और सुबह 8 बजे से जैसे नर्सेस की ड्यूटी शुरू होती है उसी तरीके से होती थी उनकी। और इन बिटवीन इफ दे हैव क्लास देन दे कैन लीव फॉर देयर क्लास, एंड आफ्टर दैट, आफ्टर टेकिंग द क्लास दे हैड टू रिपोर्ट इन द वार्ड। और उनका पूरा का पूरा जैसे सिस्टम रहता है 8 to 2, 2 to 8, और फिर 8 to 8 नाइट शिफ्ट में। तो इसी तरीके से कहीं ना कहीं यदि हमें क्लिनिकल पे एम्फेसिस करना है फार्मासिस्ट को, क्योंकि आने वाले समय में चैलेंजेस बहुत आएंगे। ड्रग ड्रग इंटरेक्शन मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे जो है पेशेंट जो इस तरीके के आ रहे हैं यहाँ डेली, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, HIV पेशेंट आ रहे हैं। क्योंकि होता क्या है कि यहाँ छोटे छोटे जो लोग हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, बिना स्टेराइल किए हुए, बिना जो है, होता क्या है कि हॉस्पिटल में डॉक्टर बड़ा खर्चा मांगता है, तो बिना जो है ऑटोक्लेविंग किए हुए उन सब चीजों को ऐसे ही जो है ऑपरेशन करे दे रहे हैं। और पेशेंट को क्या 5-10 हजार रुपए सस्ता होना चाहिए। तो यहाँ थोड़ा सा यही है कि चीजें थोड़ा सा अपने को भी थोड़ा सा, क्योंकि हम सोसाइटी में, भाई देखो सीधी सी बात है, सोसाइटी को हमें पे बैक तो करना होगा। जी तो हम थोड़ा सा इसी में है कि यहाँ थोड़ा हॉस्पिटल ट्रेनिंग को और थोड़ा सा उस पर फोकस किया जाए। कंपेरेटिवली गेटिंग ए सर्टिफिकेट, इट शुड बी फोकस्ड ऑन दी प्रैक्टिकल अप्रोच। जी। तो ये थोड़ा सा इसमें है। बाकी आप फार्माकोलॉजी के एक्सपर्ट हैं, जो फार्माकोलॉजी के एक्सपर्ट हैं वो बेहतर तरीके से जानते ही हैं। तो जी। मेरा तो ये सजेशन है। बाकी बहुत सारे महानुभाव लोग बैठे हुए हैं, मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस होल्डर हैं, तो वो सब बताएंगे। सर अपने अपने व्यूज दीजिए। अदर जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, आई रिक्वेस्ट आपके भी कुछ व्यूज हो तो, क्योंकि सबसे मैं पर्सनली परिचित नहीं हूँ। आईडीज जो यहाँ से दिख रही हैं, यादवेंद्र दत्त शुक्ला जी हैं, मोनिका राघव, डॉक्टर विनय कुमार विनय पाटिल। कुमार हैं। आई रिक्वेस्ट आप लोग भी कुछ, अगर आपका ओपिनियन है, कुछ अगर आपने सिलेबस रिव्यू किया है तो प्लीज आप कुछ कमेंट उस पर ऐड करना चाहें तो। ये यतेन से शायद कुछ बोल रहे हैं, एक बार हाँ, आपका यदवेन सर, म्यूट है। यदवेन सर अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए आप। नॉट ऑडिबल सर। नहीं, शुक्ला जी, यादवेंद्र शुक्ला जी, आप सर अपने आप को अनम्यूट करिए सर। अभी नहीं हो पाया है। आई थिंक नेटवर्क इशू। हाँ शायद। कुछ कनेक्टिविटी का इशू है उनकी तरफ से, ऐसा लग रहा है।
स्क्रीन पॉज हो गई। जी 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 सर। सर मैं थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको। नो नो इश्यू सर। हाँ हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल जो दीपिका मैम ने बताया जी कि आई एम वर्किंग एज ए डायरेक्टर, आई एम नॉट वर्किंग एज ए डायरेक्टर, आई एम वर्किंग एज ए सीनियर प्रोफेसर हियर. ओके। One thing, and I want to add some more points to the Satyen sir. Satyen sir suggested the very good point related to the inorganic chemistry subject. The earlier name was the pharmaceutical inorganic chemistry. Actually, if we consider the from the yearly pattern, it was taught for 1 year earlier. Then the content was reduced for 1 semester, and presently 2 subjects merged together, as you told and Satyen sir told. So what happened? Important points, important topics are missing. As Satyen sir told that adjournment topic was missing. Means it will miss if the new syllabus is there, and some other important topic like major extra and intracellular electrolytes, राइट। that is also there. So we should critically see that particular syllabus. What is the function of the physiological ions, replacement therapy in every hospital? This means this is used NSRL. These are used, but if our students are not aware, then that will be really missing of the knowledge. We can say that important point is there. ORS, what is ORS? What is the physiological acid-base balance? So these points will miss. This means if we merge these 2 subjects together. So I am just adding the points. Shukla sir, actually they were there in the second, first unit second, acid-base chemistry and major intra and extracellular electrolytes. They were included in that one. Okay, sir. Okay. Shukla sir. It's a For your Dr. kind attention, it is in Dr. second unit. Yes. Dr. Jain. Okay. Okay. So here it is mentioned. Acid-base chemistry, buffers in pharmacy. स्टिल सर ओवरऑल अगर इसको कंपेयर करते हैं जो हमारा एनालिसिस, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो दे बोथ आर कैरिंग 5 यूनिट्स separately as 2 subjects, but merge करने पर कहीं ना कहीं too much lengthy. It will be too much lengthy, sir. Better they go for the 5th semester subject that they have already pharmaceutical, given the name pharmaceutical analysis. They can put all these things in that semester, because in first year मतलब स्टूडेंट को ऐसा होना चाहिए बिल्कुल लाइटली एकदम स्मूथ चले. अब उसको ये सब देखो, सबसे आप केमिस्ट्री पढ़ा ले जाओगे, मैं जैसे केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ इनऑर्गेनिक, तो मुझे पता है कि बच्चे को कैसे पढ़ाना है, लेकिन वही आप एनालिसिस पढ़ाए तो बच्चे की हवाइयां उड़ने लगती है एनालिसिस सुनते ही. अभी उसको परिपक्व होने दीजिए. आप 5th सेमेस्टर तक जाएंगे तो बच्चा वही रहेगा जो सब कुछ समझेगा, जानेगा. उसको पता ही नहीं है और आप अभी कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक और ये सब पढ़ाई दे रहे हैं, वो सब संभव है नहीं. तो मेरा सजेशन यही है कि इसमें यदि एनालिसिस करके आप 4th सेमेस्टर में डाल दो, कहीं पे भी डाल दो, लेकिन 1st सेमेस्टर में नहीं होना चाहिए एनालिसिस, कम से कम. इसी में थोड़ा सा और सिलेबस बढ़ा दीजिए, लेकिन ये दोनों मर्ज हो गए तो बहुत लेंथी हो जाएगा हेमंत सर. Yes, sir. Actually, we are jack of all and master of pharmacy. They have compressed many subjects. In medicinal chemistry, actually earlier there were 3 subjects, and means in 3 semester the contact hours are the 12, means 3 credit, 3 for the theory, means and 1 for tutorial. Yes. So total 12 contact hours are there for medicinal chemistry. If we consider the medicinal 1, medicinal 2, medicinal 3. Now there are only 2 subjects. Yes. One is the medicinal chemistry theory and another is the biomedical chemistry. Biomedical.
So, in medicinal chemistry theory, we see that the content is very vast, Yes. and it will not be assimilated by the student. It cannot be digested by the student. I feel that. So the same issue is there कि 3 सेमेस्टर का सब्जेक्ट उन्होंने 2 में उसको किया है, तो मेडिसिनल केमिस्ट्री इधर और उधर बायोमेडिकल केमिस्ट्री, तो 2 में डिस्ट्रीब्यूट करने पर वो लेंदी हो ही रहा है। हो रहा है, और वही एकदम सुपरफिशियली स्टूडेंट उसको जाएंगे। सर, हमें सिलेबस कवर नहीं करना है, हमें उनको सिखाना है। मींस दे शुड पार्टिसिपेट, कंट्रीब्यूट। तो ये एक दिक्कत वाला बात हो रहा है, मतलब जी केमिस्ट्री मिसिंग हो रही है अभी, और केमिस्ट्री फोबिया और बढ़ जाएगा बच्चों में। एक्चुअली केमिस्ट्री इज द बैकबोन ऑफ द फार्मेसी। आई थिंक ये जो ट्रांजिशन होगा अगर फर्स्ट सेम में थोड़ा सा इजी होगा, उसके बाद सेकंड में जैसे बायोकेमिस्ट्री पर आएंगे, थर्ड में हेट्रोसाइक्लिक पर आने के बाद सीधे फोबिया बढ़ना शुरू हो जाएगा। नहीं सर, फर्स्ट सेम में भी मर्ज हो गए ना सब्जेक्ट्स। हाँ, एनालिसिस और ये मर्ज हो गया, पीआईसी। उसमें से कुछ बेसिक टॉपिक्स तो उधर रखे हैं, कुछ बेसिक टॉपिक्स फर्स्ट में रखे, बाकी उठा के फिफ्थ में एडवांस के साथ डाल दिए। उसमें एचपीएलसी तक, एचपीएलसी आईआर सारा इंस्ट्रूमेंटेशन भी ऐड कर दिया। किया है उन्होंने, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट ईयर में एडमिशन भी लेट होते हैं और एग्जाम जल्दी होती है। फर्स्ट ईयर थोड़ा लाइट रहे तो ज्यादा अच्छा है। Yeah, it is important concern. एक्चुअली कैसा है कि अभी मेरे ख्याल से एडमिशन प्रोसेस चालू है, महाराष्ट्र में तो चालू है। हाँ सर, इधर भी चालू है सर। अभी स्टिल जो एडमिशन प्रोसेस का, यूनिवर्सिटी हैज नॉट प्रोवाइडेड एनओसी फॉर द कॉलेजेस, स्टिल काउंसलिंग इज पेंडिंग, मतलब ब्ला ब्ला बहुत सारी चीजें हैं। तो बच्चा स्टिल, स्टूडेंट आर कमिंग, कॉलेज आर कॉलिंग देम फॉर द स्टडी, दे आर teaching them the basics like chemistry, like biology, geology. They are teaching that one. But just they are doing the time pass. Until unless there is any notice. नहीं हुआ तो फिर कैसे, मतलब? नहीं सर, एक्चुअली है क्या कि फिर सर स्टूडेंट इधर उधर भाग जाएगा। ये भी तो है, समस्याएं बहुत सारी है सर। मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। मार्केटिंग स्ट्रेटजी 1-1.5 महीने थोड़ा सा उनको मतलब केमिस्ट्री और बायोलॉजी में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं तो ठीक रहता है। वो बेसिक चीजें जैसे सेल है, टिश्यू है, उन सब के बारे में, सिस्टम्स हैं। केमिस्ट्री में भी बेसिकली जो है पीरियोडिक टेबल है, क्योंकि बच्चा आजकल जैसा आ रहा है भगवानी वाले के। और सर चूंकि हम तो जो है बड़े चेंज हुआ ना अभी, मेरे ख्याल से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी चेंज किया ना, 35% ही हो गया ना अभी तो। 35 क्या बच्चा देगा सर 35 वाला? इधर सर यूपी में तो कोई क्राइटेरिया नहीं है, बस पास होना चाहिए, +2 पास होना चाहिए। हाँ, वो 35 ही हो गया सर। हाँ, 35 हो जाते हैं। हो सकता है आने वाले समय में जैसे नर्सिंग में आर्ट्स को अलाउ कर दिया विद कंपार्टमेंट, तो हमारे यहाँ पे भी आर्ट्स लेता है। हाँ, कंपार्टमेंट भी लेते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वो बाद में एग्जाम क्लियर करता रहता है, तभी फॉर्म शुरू हो गया होता है उसका। सर मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी ज्यादा, मतलब जो गवर्नमेंट की जो प्रेशर, मतलब गवर्नमेंट का ये है कि सभी गाइडलाइन फॉलो करना है, तो उसमें क्या हुआ कि ज्यादा, मतलब ज्यादा कंटेंट हम दे रहे हैं बच्चे को। एक्चुअली होना चाहिए कि स्पेसिफिक कंटेंट होना चाहिए। जैसे इंजीनियरिंग का बच्चा है तो उसको एक स्पेशलाइजेशन हो जाता है, तो हम चाहे तो बाद में स्पेशलाइजेशन वाले सब्जेक्ट्स पढ़ाएं जो बच्चे का जहाँ इंटरेस्ट है। हाँ, जैसे इंडस्ट्री में एनालिटिकल में जाना चाहता है तो उसको एनालिटिकल पढ़ाएं, विजिलेंस में जाना चाहता है तो वहां पढ़ाएं, प्रोडक्शन में जाना चाहता है तो उस तरीके के, वो ज्यादा ठीक रहेगा। हाँ, मेरा ऐसा कहना है आफ्टर सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर थोड़े स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट चालू हों, 2 साल स्पेशलाइजेशन पढ़ने देते हैं उसको। जी, तो उसमें क्या रहेगा, उसको मालूम रहेगा ना कि वो सब्जेक्ट है, वो पता पाएगा। नहीं तो हो क्या रहा है, एमएससी वाले बच्चे के साथ जब कंपैरिजन होता है ना, तो बीफार्म वाला फाइट नहीं कर पाता, उसकी केमिस्ट्री नहीं रहती बराबर। जॉब लगती है एमएससी केमिस्ट्री की या बीएससी केमिस्ट्री की, क्योंकि उनके बेसिक्स तो वो बता पाते हैं ना, उन्होंने उतना ही पढ़ा है, 2 या 4 सब्जेक्ट वो पढ़ते हैं। तो अभी इंडस्ट्री में भी जब हम देखें प्लेसमेंट के हिसाब से देखते हैं तो उन्होंने ऑब्लिक में रखा है,
ऑब्लिक में ऑब्लिक ऑब्लिक, बीफॉर्म ऑब्लिक एमएससी केमिस्ट्री, बीएससी केमिस्ट्री। तो साइंस के बच्चे मतलब प्रोफेशनल बीइंग ए प्रोफेशनल कोर्स ज्यादा पढ़ने की वजह से हमारा स्पेसिफिक नॉलेज नहीं हो पाता है, ऐसा लग रहा है सर। इसमें सर थोड़ा सा जैसे ये जो है मैट है, जैसे मॉडर्न एनालिटिकल टेक्निक, ठीक है। अब जैसे मैट में जो है इसको सर मास्टर्स में रहने देते तो ज्यादा ठीक रहता है, जहां तक मुझे लग रहा है सर। वो थोड़ा सा रिपीट भी ऐसा लगता है, क्योंकि वो जो एडवांस वर्जन है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का सेमेस्टर 5 में, उसमें मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंटेशन ऐड कर रखे हैं सारे इंस्ट्रूमेंटेशन। वही तो मैं कह रहा हूँ, इलेक्टिव में था एक्चुअली, अभी जो एग्जिस्टिंग करंट सिलेबस में इलेक्टिव में है सर ये। हाँ, इलेक्टिव में ही डालें तो भी चल सकता है सर। नहीं सर, अभी जो जीए सिलेबस है इसमें इस सेमेस्टर 5 में फार्मास्यूटिकल एनालिसिस सब्जेक्ट जो किया है, उसमें जो बेसिक फार्मास्यूटिकल एनालिसिस थी उसके साथ साथ ये जो एडवांस मॉडर्न एनालिटिकल टेक्निक्स में इंस्ट्रूमेंट्स है, सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, सब ये टॉपिक डाले हुए हैं। तो दोबारा मैट अलग से करने का, उसमें एडवांस वर्जन आ गया उसका। एक्चुअली सर इसमें सर एक सजेशन ये रहेगा, यादवेंद्र सर, मैं खाली ये कहना चाह रहा था कि जैसे कि इंडस्ट्री में जो नीड बैचलर फार्मेसी के बच्चे की होती है, जिनसे वो सोचते हैं कि क्या होना चाहिए, कि भाई अगर केमिस्ट्री से सर भी बोल रहे थे कि भाई एमएससी वाले या बीएससी के बच्चे जो है वहाँ पे वो है, हाँ, तो ग्रेजुएट बच्चा अगर इंडस्ट्री में जाता है तो कम से कम क्यूसी में जा रहा है, क्वालिटी कंट्रोल में, तो उनको ये समझ में आता है कि भाई इसको जो बेसिक ही पता होगा कि भाई एचपीएलसी कैसे काम करती है, आईआर कैसे काम करती है। तो उसमें भाई इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से और दो चीजें मैं कहना चाहता हूँ कि एक डिप्लोमा में आप जो ट्रेनिंग ये 45 दिन की कराते हैं यहाँ पे, इसका कोई न कोई एक होना चाहिए कि बच्चा कुछ सीख रहा है। क्योंकि मैं जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, बच्चे आते हैं बस घूम के चले जाते हैं, अपना सर्टिफिकेट लिए जाकर रजिस्ट्रेशन करा लिए, तो कहीं ना कहीं ये नाम खराब होता है कि इनको सही से कुछ नहीं पता है, एक बात। और दूसरी, हॉस्पिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको ड्रग इंटरेक्शन के बारे में पता होना चाहिए, कुछ कम से कम नहीं, क्योंकि स्पेसिफिक 15-20 ऐसी हैं जो फाइनेंस के भी नहीं उठाया कि एग्जामिनेंट उसको ऐड करना चाहिए। मैं कहता हूँ कि भाई जैसे ग्रामीण स्तर पे किस तरह के पॉइजन केस आते हैं उस पर एक लिस्ट बना लें, हार्डली कुल मिला के 15-20 चीजें ऐसी होती है जो कि जिसके पेशेंट छोटी स्तर पे जैसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे या एफआरओ सेंटर पे आते हैं। तो आज अगर ये कहते हैं, जैसे कल एक मैडम ने कहा था ना कि वो कौन सी मैम थी, कि नोकिया वाला हाल हो जाए, नोकिया वाला हाल इसीलिए हो रहा है कि डिफाइन कर ही नहीं रहे, खाली हमने एक फैक्ट्री बना दी, फार्मेसी कॉलेज है, आओ एडमिशन लो चले जाओ। इतनी खराब गुणवत्ता हो गई है, बच्चा सही में आपका कुछ नहीं जानता। अगर फार्मासिस्ट है, एज फार्मासिस्ट अपने आप को कहता है मैं फार्मासिस्ट हूँ, अगर उससे बेसिक सवाल आप पूछ लीजिए उसको कुछ नहीं पता है। चाहे वो आज यही हाल इंडस्ट्री में है। इंडस्ट्री में अगर आपका ग्रेजुएट जा रहा है, क्योंकि इतना हमने कंसोलिडेट कर दिया कि ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, इंडस्ट्री की खाली आप समझिए तो मेरे हिसाब से मतलब कि 2-4 उसमें जो है आप वो कर लीजिए तो इंडस्ट्री लायक हमारा बच्चा बन जाएगा। छोटे छोटे इतने सेमेस्टर आपने बना दिए, इतने सारे उसमें सब जो वैल्यू, भाई आप फीडबैक इंडस्ट्री का ले रहे हैं, फीडबैक आप हॉस्पिटल का ले लीजिए, कम से कम ये पता लग जाए किस तरह की नीड है। वहां पे जो लड़का हमारा शूटिंग्स में जा रहा है, भाई मोस्टली इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, भाई 3-4 जो भी इनके डिपार्टमेंट है, ये फार्मा को विजिलेंस में जा रहा है, इंडस्ट्री में हमारा जा रहा है, प्रोडक्शन में है। प्रोडक्शन में 3 डिपार्टमेंट है, क्यूसी, प्रोडक्शन और क्यूए, मोस्टली यही है। तो क्यूसी में अगर आपका ये जितने भी आप एडवांस उसमें बता रहे हैं भाई एचपीएलसी की जानकारी उसको अच्छे से, डिसइंटीग्रेशन किस तरह से होता है, क्योंकि इंडस्ट्री को जो काम लेना है वो तो उनकी एसओपी होती है, उस हिसाब से वो सब करके आपको करवा लेंगे, लेकिन कम से कम प्राइमरी नीड जो है उनको ये लगता है कि बच्चों को ये पता होना चाहिए, तो उससे इंडस्ट्री को भी हेल्प हो जाएगी कम से कम। तो मेरा सुझाव ये है कि भाई हॉस्पिटल स्तर पे जो बच्चा है, डिप्लोमा स्तर पर खासकर, उसको कुछ चीजें तभी वो नर्सिंग के साथ वो कर पाएंगे, तभी अपनी वो बना पाएंगे। डॉक्टर के बाद हॉस्पिटल में चोरी है तो वो फार्मासिस्ट है, कहीं अगर डॉक्टर नहीं है तो फार्मासिस्ट एक ढंग से उसको जो है वो देख सके कि हाँ कोई पेशेंट किस तरह का है, उसको प्राइमरी उपचार किस तरह से देना है। आज के समय में ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि जो इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती उसमें ये ट्रेनिंग करते नहीं है, न तो किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ऐसे चलता जा रहा है और नाम खराब हो रहा है इंस्टीट्यूट का, नाम खराब हो रहा है फार्मेसी प्रोफेशन का। बात सही है सर, एक बार अपने को इंट्रोड्यूस करा दीजिए। यादवेंद्र सर कहाँ से हैं? मेरा नाम सर डॉक्टर यादवेंद्र शुक्ला है, मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूँ, रहने वाला मैं जौनपुर का हूँ। मैं डिप्लोमा इन फार्मेसी दयानंद सार कॉलेज ऑफ फार्मेसी बेंगलोर से किया हूँ।
सौरभ इंस्टीट्यूट से मैंने बी फार्मा किया है, फार्मा सौरभ इंस्टीट्यूट से किया है, पीएचडी मैंने एपीजे अब्दुल कलाम इंदौर से किया है, डॉक्टर शुक्ला जी के कर्नाटक शुक्ला के अंडर में। इस समय मैं एज ए प्रोफेसर कलाम में पढ़ा रहा हूँ, विश्वनाथ कॉलेज ऑफ फार्मेसी में, सुल्तानपुर ओके जी सर। जी। तो कंसर्न सर ने अपना बताया, और कोई ऐड करना चाहेगा सर की बात में? सर आप क्या करिए, कुछ अपना जो भी है ना ड्राफ्ट आप ईश्वर सर को या नीलकंठ सर को भेज दीजिए, तो उसको इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। आप राइट अप थोड़ा सा जो आपके सजेशंस है ना, बिल्कुल सर, मैं सर बिल्कुल कंसाइज फॉर्म में, तो हम लोग कम्युनिकेट मैं करेंगे। सर मुझे एज ए फार्मासिस्ट में 25 साल हो गए, मैं 2003 का जो फार्मासिस्ट हूँ, तो अभी मैं देखता हूँ तब में और में क्या अंतर आया है। तो उस चीज से बड़ा वो रहता है कि भाई बात होती है ना कि फार्मासिस्ट एज ए फार्मासिस्ट की ड्यूटी क्या है, रोल क्या है, किस तरह से वो समाज में अपने आप को प्रेजेंट करता है कि भाई आदमी कैसे प्रभावित होता है। आप जब आप कुछ इस तरह का सर्व करोगे ना, भैया नहीं इसको आता है, दवा के बारे में जानता है। आज भी हॉस्पिटल में दवा के बारे में फार्मासिस्ट अगर ठीक से पढ़े तो उसकी कितनी नॉलेज डॉक्टर तक नहीं होती, क्योंकि डॉक्टर सिर्फ एमआर बताता है, वो जानता है। दवा के बारे में सबसे ज्यादा फार्मासिस्ट ही जानता है, रोल भी उसी का है। लेकिन जब अपने रोल को आप ठीक से नहीं कर पाओगे तो जाहिर सी बात है बात बोलोगे, यही मैटर है उसमें। जी सर, तो अभी जो सिलेबस है उसको 2 टाइप से इन्होंने किया है, इंडस्ट्री ओरिएंटेड, हॉस्पिटल ओरिएंटेड। तो जो सजेशंस हैं सर, हाँ मैं एक्चुअली मैं उसमें करता हूँ, क्योंकि मैं इंटास में भी मैंने 5 साल मैंने जॉब किया है, तो उसके हिसाब से भी मैं नए बच्चों को देखता था, तो मैं समझ में आता था कि किस तरह के इंडस्ट्री की वो है कि भाई क्या चाहती है बच्चे से, और किस तरह का हमें उनका वो है भाई उनका जो काम करवाना है, उनके पास सारा सिस्टम बना हुआ है। बस यही लड़का पकड़ने वाला चाहिए, उसके बाद जो करवाना है वो करवा लेंगे, जो है उनके पास समस्या नहीं। भाई एक बेसिक नॉलेज जो होती है, भाई हाँ बच्चा पढ़ के आया है, इसके पास ये बेसिक चीजें होंगी, तो वो भी करके हम कोऑर्डिनेट करके इंडस्ट्री से जो है भाई किस तरह से वो है। अच्छा चूंकि एआई का जमाना आ गया, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको हम पढ़ाते रहते हैं, बच्चा पढ़ता है, अब एआई उसको 2 मिनट में कर देगा। भाई अब उसमें बहुत सारी चीजें हैं। चलिए आए हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा सा जो ड्राफ्ट है आपका, आप ड्राफ्ट को देख के ड्राफ्ट के हिसाब से पॉइंट वाइज बनाए, जो सजेशंस हैं वो यदि मेल कर देते हैं नीलकंठ सर को या ईश्वर सर को। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नीलकंठ सर के साथ तो मैं कई बार उसमें ग्रुप में जुड़े हैं, मैं कई बार पार्टिसिपेट करता रहता हूँ, बस पहली बार जो है लाइव उसमें है। चलिए, और जो पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं, किसी और के कोई सजेशन कुछ? मैं एक बार नाम ले ले रहा हूँ, मिस मोनिका राघव करके एक आईडी है, अगर कुछ ऐड करना चाहते हो, डॉक्टर विनय पाठक, अदरवाइज आई विल कॉल डॉक्टर अनुराग एंड डॉक्टर गिरी टू। नमस्कार सर। हाँ जी सर, जी 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 सर, आप लोगों ने बहुत ही हेल्दी और इस बारे में बहुत ही नॉलेजेबल डिस्कशन किया। अच्छा सर, एक चीज़ जो स्पेशलाइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं कि थर्ड ईयर से स्पेशलाइज हो जाएंगे, ऐसा है, तो उसमें क्लिनिकल का है और इंडस्ट्रियल है। तो जैसे हम क्लिनिकल में जाएंगे तो उसका क्या एडवांटेज है? जैसे फार्मेसी प्रैक्टिस के रेगुलेशन में क्या कुछ बदलाव हमारे सरकारों ने ऐसा किया है जिससे हमको फ़ायदा मिल सके, कि केवल फार्मेसी स्टोर तक ही सीमित रहेंगे हम अगर क्लिनिकल में जाते हैं? तो सर थोड़ा सा यही सजेशन था कि जानना भी था आपसे कि उसमें क्या है, क्या हो रहा है। ऐसा कोई स्पेशलाइजेशन का तो अभी इस ड्राफ्ट सिलेबस में भी नहीं है। अभी तो सिलेबस चल रहा है फ्रॉम 1st to 8th सेमेस्टर, एक यूनिफॉर्म एक रन में चल रहा है। उसमें स्टूडेंट को अलग अलग लेवल्स पे जो एडवांस टेक्निक्स हैं, जो स्किल्स हैं, वैल्यू एडेड कोर्सेज हैं, उनसे रूबरू कराने की बात है नए सिलेबस में। इसमें स्पेशलाइजेशन बेस्ड सेग्रीगेशन अभी नहीं किया। सजेशन जरूर आया था अभी सर की तरफ से कि ऐसा हम लोग कर सकते हैं कि जैसे इंजीनियरिंग में होता है वैसा किया जा सकता है, लेकिन अभी हमारे पास ऐसा कुछ ड्राफ्ट सिलेबस में तो नहीं दिख रहा। और सर ये फर्स्ट सेमेस्टर के लिए जो सर ने अभी बहुत अच्छा कहा कि बच्चे के ऊपर बर्डन पड़ेगा, क्योंकि आईपीसी को और एनालिसिस को मर्ज कर दिया गया है और सिलेबस थोड़ा लेंदी हो गया है। तो ये तो सर ने ऑलरेडी कह दिया है कि इसको दोनों को जैसे था पहले वैसे ही से कर दिया जाए तो थोड़ा सा बच्चों में बर्डन कम रहेगा।
जी ठीक है। आई रिक्वेस्ट डॉक्टर अनुराग एंड डॉक्टर गिरी कुछ ऐड करना चाहेंगे, अदरवाइज जी सर, गुड इवनिंग जी to all faculty members, Dr. Nitin sir. डॉक्टर अनुराग यादवेन प्लीज म्यूट कर लीजिए। अनुराग सर अपना वीडियो कनेक्ट कर लीजिए और बाकी सभी लोग अपना ऑडियो म्यूट कर लीजिए। डॉक्टर शुक्ला प्लीज म्यूट कर लीजिए। हाँ, जी जी डॉक्टर गिरी। Good evening, all of you, all respective faculty members, and my special pranam to Dr. Eman Jain sir and all respective faculty members. अभी आज फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के डिस्कशन में हम लोग जुड़े हैं, काफी चीजें इसमें आ रही हैं। तो ओवरऑल जो हम लोग का ये सब्जेक्ट वाइज मीटिंग करने का जो एक आइडिया था वो ये है कि जो सिलेबस फार्मेसी काउंसिल ने ड्रॉप किया है वो सिलेबस किस उद्देश्य से ड्रॉप किया गया है, एनएपी को ध्यान में रखते हुए। तो जो सिलेबस ड्रॉप किया गया है वो हम एज ए फैकल्टी मेंबर्स स्टूडेंट को कितना डिलीवर कर पाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज कि जो स्टूडेंट्स है हर रीजन के अलग अलग अपने अपने इश्यूज हैं, जैसे हम लोग यूपी में अलग इश्यूज है, सर हेमंत सर है, हर जगह के अपने अपने इश्यूज हैं। जो फर्स्ट ईयर में बच्चे के ऊपर कितना बर्डन जा रहा है, हम उसको इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड बना रहे हैं, क्लिनिकल ओरिएंटेड बना रहे हैं या मार्केटिंग ओरिएंटेड बना रहे हैं। तो जो सिलेबस इनका अपग्रेड किया गया उसमें जो चेंजेस लाए गए हैं वो चेंजेस अगर लाए गए हैं तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू उस पर क्या है, वो चेंजेस सही है या गलत है, उसमें इश्यूज क्या है, हमको उस इश्यूज को फाइंड आउट करना है और उसके सुझाव भी फार्मेसी काउंसिल को भेजना है। ये पूरी मीटिंग करने का हमारा पर्पज ये है कि इश्यूज क्या हैं, क्या दिक्कत आ सकती है। जैसे भाई आया कि हाँ ये दो सब्जेक्ट को मच करके इसको लेंदी कर दिया गया है। फर्स्ट ईयर में अगर बच्चा ये सब्जेक्ट पढ़ेगा, दूसरा एक सब्जेक्ट और है जो जिसपे हम लोग अभी इस मीटिंग में नहीं डिस्कस किया, लास्ट 2 मीटिंग में काफी डिस्कस हुआ। फर्स्ट ईयर में पाइथन कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग जो ला दिया गया है, और जो स्टूडेंट्स बायोलॉजी बैकग्राउंड्स के हैं, जहाँ तक मुझे याद है सर जब हम लोग बी फॉर्म में थे तो हमारे कंप्यूटर में 2 लैंग्वेज थी, C++ एंड फोटान 77। लास्टली क्या होता था कि टीचर्स भी आता था कंप्यूटर पढ़ाने के लिए, बट कहता था कि आप लोग फंडामेंटल पढ़ लीजिए, फंडामेंटल से पास होइए, प्रोग्रामिंग छोड़ दीजिए। तो लास्ट में हम लोग प्रोग्रामिंग छोड़ ही देते थे, बस फंडामेंटल ही पढ़ के पास हो लेते थे। और आज तक समझ में नहीं आया कि वो फोटान 77 का यूज कहाँ पे हुआ और C++ का यूज कहाँ हुआ, और आज तक वो लैंग्वेज हम लोग को समझ में नहीं आई। तो वैसे स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं उनको हम क्या डिलीवर करें फर्स्ट ईयर टू लास्ट ईयर, तो इस चीज पे हम लोग का मेन फोकस होना चाहिए। और क्या इश्यूज हैं, अगर ये पॉइंट ऐड किया गया है, वो पॉइंट ऐड किया गया है, तो उस पॉइंट को रखने से क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है, और अगर उसको हम लोग उसमें ऐड कर रहे हैं तो अच्छा है, अगर अच्छा नहीं है तो उसको हम कैसे हटा सकते हैं और उसमें क्या पॉइंट्स है। ये हम लोग के मीटिंग का मेन ध्येय है। और हम लोग का लास्ट में है कि हर सब्जेक्ट वाइज हम लोग ड्रॉप करेंगे एंड फाइनली जो हम लोग लास्ट में एक्सपर्ट मीटिंग रखेंगे जिसमें कोशिश करेंगे कि फार्मेसी काउंसिल के भी रिप्रेजेंटेटिव रहे, उनके सामने हम लोग इस चीज को रखें। देन फाइनली वी विल सेंड ऑल ड्रॉप इश्यूज और उसका समस्या और उसका निदान सबको ड्रॉप करके हम लोग फार्मेसी काउंसिल को सेंड करेंगे, 1 by 1 इंडिविजुअल एंड जो भी एसोसिएशंस जुड़े हैं उसके थ्रू हम लोग भेजेंगे। अभी जो हॉस्पिटल ट्रेनिंग की जो एक चर्चा हुई, हॉस्पिटल ट्रेनिंग में भी हम लोग पिछले भी सेशन में इस पर डिस्कस किए थे कि क्यों ना हम फार्मेसी काउंसिल को एक पर्सनल सजेशन भेजें कि जितने भी हॉस्पिटल हैं मोर देन 100 बेड या 150 या 200 बेड, वो सबको एक गाइडलाइन खुद प्रोड्यूस करें, क्योंकि फार्मेसी काउंसिल खुद एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, डायरेक्ट मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। तो जो भी रजिस्टर्ड हॉस्पिटल हैं, क्योंकि मोस्ट हॉस्पिटल चैरिटेबल होते हैं, चैरिटी वाले होते हैं, एनजीओ वाले होते हैं, नॉन प्रॉफिटेबल होते हैं, तो फार्मेसी काउंसिल अपने तरफ से उनको लेटर जारी करे
क्योंकि बहुत सारे सर जो अच्छे हॉस्पिटल होते हैं वो बच्चे जाते हैं ना, कहते हैं हमारे यहाँ सीट नहीं है, हम हॉस्पिटल ट्रेनिंग नहीं कराते, वो नहीं कराते हैं। तो कौन बच्चा कहाँ पे है, ये फार्मेसी काउंसिल हर हॉस्पिटल को, ये चाहे वो प्राइवेट हो सरकारी हो, कि हाँ बी फार्म वाले को आपको इतने दिन का हॉस्पिटल ट्रेनिंग कराना है, और कंपलसरी है कि आपको हर साल 200 बच्चे को 300 बच्चे को आपको हॉस्पिटल ट्रेनिंग कराना है। इससे उस हॉस्पिटल के ऊपर प्रेशर रहे कि हाँ भाई हमको कराना ही कराना है, और फार्मेसी काउंसिल उनसे रेगुलरली ले कि आपने कितने बच्चे को हॉस्पिटल ट्रेनिंग कराया। और यही चीज इंडस्ट्री के साथ भी वो कर सकते हैं। तो मेन चीज हम लोग का इस पे फोकस है। और सबसे बड़ी चीज ये जो हम लोग का एक कराने का ये है कि होता क्या है कि फार्मेसी में कोई भी नई चीज होती है तो हम लोग साइलेंटली उसको देखते हैं कि ठीक है यार एआई आया है पढ़ा लेंगे, पाइथन कोडिंग है पढ़ा लेंगे, करना क्या है पढ़ा लेंगे, हमको तो जो मिलेगा वो पढ़ा लेंगे। लेकिन स्टूडेंट क्या उसको अडॉप्ट कर रहा है? अभी बात हो रही है कि भाई इंडस्ट्री में जाते हैं, हमारे भी बहुत फ्रेंड है, आप लोग भी फ्रेंड, बोलते हैं सर स्टूडेंट तो कुछ जानता ही नहीं है। वो क्यों नहीं जानता है? क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स जो हम लोग बी फार्मा वाले हैं, हम लोग कई सेक्टर में बढ़ गए। हम कभी फूड सेफ्टी में फूड ऑफिसर का आया तो हम फूड ऑफिसर नहीं बन पाए, चलो फूड टेक्नोलॉजी ऐड कर दो। माइक्रोबायोलॉजिस्ट नहीं बन पाए तो फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी ऐड कर दो। तो इतने इतने सारे सब्जेक्ट हैं, हमको हर फील्ड का ये बना दो। फिर ये फार्मासिस्ट से हटा के फिर एक कोर्स आ गया क्लिनिकल के लिए, स्पेशली आया कि 6 ईयर का फार्म डी कोर्स लाया गया। अब 6 ईयर फार्म डी कोर्स करने के बाद लास्ट में जब बच्चा पास आउट हुआ, बैच रोड पे आ गया, तो करेगा क्या फार्मा डी? तो फिर एक झुंझुना दिया गया कि इनको क्लिनिकल फार्मासिस्ट बना दो। 2 साल वाला भी जाएगा फार्मासिस्ट में, 4 साल वाला भी जाएगा और 6 साल वाला भी वहीं जाएगा। हुआ कि लास्टली कितने हॉस्पिटल क्लिनिकल फार्मासिस्ट रखते हैं? तो ये सब पॉइंट दूसरे इश्यूज हैं, अगर इस इश्यूज पे जाएंगे तो बहुत लंबा चलेगा। हमारा अभी मेन कंसर्न ये है कि जो ये सिलेबस आ रहा है, इस सिलेबस को आप देखेंगे, सुटिक्स के कल हम लोग डिस्कशन किए कि हर सेमेस्टर में एआई इन प्री फार्मुलेशन, एआई इन फार्मुलेशन, सब में आई कर दिया। और बिगिनिंग फ्रॉम फर्स्ट ईयर, तो क्या स्टूडेंट और टीचर्स, कितने टीचर ऐसे हैं जो एआई को इस लेवल तक पढ़ा पाएंगे? तो उसको इंट्रोडक्टरी करें, फिर उसको 3rd ईयर से 4th ईयर से कि भाई क्यूए में क्या किसकी क्या जरूरत है। अभी मैथमेटिक्स लास्ट में जाके एआई वाले मैथमेटिक्स इंटीग्रेशन कैलकुलस का पूरा पार्ट जोड़ रखा है इन्होंने। फर्स्ट ईयर से आपने मैथ्स हटा दिया। तो स्टूडेंट्स जो बायोलॉजी बैकग्राउंड का है उसको जाके 3rd ईयर में 4th ईयर में आप इंटीग्रेशन पढ़ाओगे, डिफरेंशिएशन पढ़ाओगे, प्रोबेबिलिटी पढ़ाओगे, वो कहाँ से पढ़ पाएगा? तो ये सब सारे इश्यूज हैं। और केमिस्ट्री में भी बहुत चेंजेस हुए हैं। तो जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है सब्जेक्ट का, किसको कहाँ पे रखना है, किस सेमेस्टर में रखना है, कौन सा टॉपिक, जैसे माइक्रो फार्मा आप लोग देखे होंगे, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी से एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, उसका प्रैक्टिकल हटा दिया गया। अब वो जो स्टूडेंट्स है, लास्ट में हम पढ़ रहे हैं पूरी स्टेरिलिटी हमको पढ़ना है भाई, इंडस्ट्री में हाइजेनिक, लेकिन हम स्टेरिलाइजेशन पढ़ा रहे हैं लेकिन उसका प्रैक्टिकल नहीं कराएंगे। स्टूडेंट वही नहीं जानेगा, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव जो है वो नहीं, ऑर्गेनिज्म नहीं जानेगा, तो फिर आगे कैसे? तो ये इश्यूज हैं। वो हम लोग को लगता है कि जो हम लोग का अभी मेन फोकस इस पे है कि क्या सब्जेक्ट में इश्यूज हैं और उसका हम कैसे उस इश्यूज को दूर कर सकते हैं, इस पे हमारा फोकस है। और अभी समय है कि हम लोग इसके लिए कर सकते हैं कि हम लोग आने वाले जनरेशन को क्या देंगे, क्योंकि अभी जो जनरेशन टीचिंग में आ रही है उसके इश्यूज के बारे में हम लोग क्या चर्चा करें। 90% नॉन अटेंडिंग एम.फार्म आ रहे हैं, तो वो तो कुछ भी पढ़ा सकते हैं, वो ऑलराउंडर होते हैं, वो ऑलराउंडर होते हैं। वो उनको आप कुछ भी दे दो, सर कुछ भी दे दो, सीखना भी नहीं चाहते। लेकिन हम लोग जो 10 ईयर्स के ऊपर वाले हैं, हम लोग क्या करेंगे? सीखना पड़ेगा एआई के साथ। हम सीखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, हमको भागना नहीं है, भागेंगे तो पीछे हो जाएंगे। एनईपी को सीखना है, एआई को सीखना है, पाइथन कोडिंग सीखना है, लेकिन फार्मेसी काउंसिल वो हमको कैसे सिखाएगी, ये हमको काउंसिल को बताना है, ये इश्यूज हमको काउंसिल को बताना है। तो ये मेरा कंसर्न है। एंड नितिन सर प्लीज। जी जी जी, थैंक यू। डॉक्टर अनुराग कुछ ऐड करना चाहेंगे? नमस्कार सभी को।
नहीं ऐड नहीं करेंगे क्योंकि गिरी सर ने काफी चीजें कह दी है, बाकी सारे जो एक्सपर्ट्स हैं ऑलरेडी कह चुके हैं। बस हम लोगों का जो ऑब्जेक्ट है यही है कि हम कितना इसको इफेक्टिव बना सकते हैं या कितना इफेक्टिवली हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जो नया सिलेबस आ रहा है एनईपी 2020 के थ्रू। तो इसी पे हम लोगों का डिस्कशन है और इसी प्रीवियस 2 दिन से लगातार डिस्कशन हो रहे हैं हम लोगों के। तो इसी चीजों पे हम लोग, और आगे तो ऑलरेडी सब लोग बता ही चुके हैं, तो यही कंक्लूड कर लेते हैं इसी को। ठीक है। हाँ, तो आई रिक्वेस्ट एट लास्ट डॉक्टर हेमंत जैन सर की कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क के साथ फिर हम लोग ये सेशन वाइंड अप करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के व्यूज आज नहीं आए हैं केमिस्ट्री में। डिस्कशन केवल 3-4 लोगों का ही रहा है। फिर भी हमारे पास कुछ जो पॉइंट्स निकल के आए हैं, एक तो फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी सेमेस्टर 1 का एक टॉपिक आया है कि उसमें 2 सब्जेक्ट्स के मर्ज होने पर सिलेबस काफी लेंदी तो हुआ ही है, साथ में फिर भी कुछ टॉपिक्स हट गए हैं, जैसे एडजॉर्बेंट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सत्येंद्र सर ने ऐड किया, ऐसे हॉस्पिटल ट्रेनिंग की भी बात हुई। इसके अलावा एक कंसर्न आया कि फर्स्ट सेम का सिलेबस थोड़ा सा लाइट होना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स, क्योंकि इंट्रोडक्शन जस्ट होता है इंट्रोडक्शन का सब्जेक्ट से, और कई बार एक लॉजिकल बात भी है कि एडमिशंस लेट होते हैं हमारी बाकी प्रोसेसेस में, तो स्टूडेंट्स के ऊपर तुरंत ही सेमेस्टर एग्जाम आ जाता है एट द सेम टाइम। तो ये भी कंसर्न था। और कहीं ना कहीं केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट्स हमारे जो केमिस्ट्री साइंस बैकग्राउंड के हैं उनसे बहुत पीछे रह जाते हैं, चाहे वो मास्टर्स इन केमिस्ट्री जरूर कर लें, एमफार्म इन केमिस्ट्री, उसके बाद भी वो उनके इक्विवेलेंट नहीं खड़ा होते। एक इम्पोर्टेंट कंसर्न था जो आज के डिस्कशन में था। तो आई रिक्वेस्ट प्रोफेसर हेमंत जैन सर प्लीज फॉर कंक्लूडिंग रिमार्क। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू फॉर द ऑर्गेनाइजिंग टीम to think about the syllabus, to think about the students, and to think about the level of. Thank you. I am thankful to the PCI team to introduce the NEP enabled syllabus. Many things are really good. And good thing that they mentioned the reference book both in theory and practicals. In existing syllabus, I think they have mentioned the reference books at the last, means theory then practical at the last they have mentioned. And one more thing is that they have mentioned the course objective and course outcomes. So they have defined course objective and course outcomes. That is also good thing, useful for the NEC purpose. But thing is that for some practical, the time duration is 3 hours. For some practical, it is 4 hours. So for some practicals, contact hours are less. And one more observation is that credit points are less for the practicals. Earlier, credit points are usually 2 allocated, but in current syllabus, draft syllabus means proposed syllabus, credit point is 1, only 50%. So I think for the practical, credit points should be more. Actually, they have allocated 1 credit point for the practicals. Earlier for PIC 2 credit point, for PA 2 credit points. So student earn 4 credit point, but now they earn only 1 credit point for both subjects together. So these are the things regarding AI. Actually, they have marked the core subjects. But I think AI should be merged. Means AI subjects should be merged together in the final year. The students, or in 3rd year, the students learn AI. But in Unit 1, utilization of the AI for pharmaceutics, in Unit 2, utilization of AI in the pharmaceutical chemistry, like that. Because that is, if we miss the core subject, then basic knowledge is missing. And when basic knowledge is missed, the people who are having the basic knowledge, maybe from the basic chemistry, they will get the job.
the professional students will not get the professional job. So I think the focus should be on the core subjects. But here they have merged the core subjects. So and introduce the AI subjects. So I, in my thinking, in my perception, if the AI subjects merge together, 3-4 AI subjects are there, and that should be merged together. If the as a optional subject, not as a core subject. So that is my perception. If we consider, we have already discussed that the PIC and PA merged together, total credit point 3 per hour. In earlier syllabus, it is the 3 hours plus 1 tutorial. So tutorial I have not seen anywhere. So that is also contact hour. If only 3 contact hours are there, then it is very difficult for a teacher to complete the syllabus effectively. So this is the tutorial should be there. In new syllabus, I have not observed. I have just seen the syllabus because yesterday I have received the call from the Ishwar sir, and he told that. But today I was busy in some activity, so I could not see the syllabus. But superficially, I have not seen the tutorials. So that tutorial should be there, because contact hours in 45 hours, it is very difficult to complete the thing. Subjects are already merged. PIC and PA merged. Similarly, medicinal chemistry is having the vast syllabus. So it is very difficult to complete the syllabus by the teacher, and it is very difficult to learn by the student. Because student should understand. This is the exercise for the student. So these are the things related to that. Somewhere they have introduced the AI in drug design, discovery, and bioinformatics, and total credit points are 2 in 30 hours. But the thing is that presently informed students are able to understand the subjects of the drug discovery, bioinformatics. It is related to their project, MFOM project. So thing is that this particular AI is good thing, but we are not having the basics of the AI. So if the students is interested, the details should be for the optional subject, not for core subject. If we consider the modern analytical technique theory subject, they have given the content, as sir told that, Neelkanth sir told that basics are mentioned there in the pharmaceutical analysis. Here they have merged the NMR and mass together, and in 10R they have merged both techniques. And they have given the one subject, food analysis, but here credit point is 1. Actually it should be 2. For every subject they have given the credit point 3. So students at least should earn credit point, means 2 credit point. Otherwise they will lose the interest, because it is the, we can say that, optional subject, I think. For green chemistry, they have given the 15-hour means 15-hour contact hour, and they have given the 1 credit point. That is okay. So these are the things. These are the few points, and I will summarize these points. I will submit these points to the Neelkanth sir and Ishwar sir later on. And if anything is missing from my side, kindly suggest. Thank you. Okay, thank you so much, sir. And I think just one concern from my side to all the panelists. एक बार मुझे लगता है जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की लिस्ट है, हमारे पास 30 सब्जेक्ट्स दिए हैं,
इन 30 सब्जेक्ट्स में से एज ऑफ माय नॉलेज इसमें मैं जो देख रहा हूँ कि 4 से 5 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो केमिस्ट्री की तरफ जा रहे हैं। एक बार आई रिक्वेस्ट की अगर आपके पास है स्क्रीन पर तो खोल लीजिएगा। इट्स yes, मैं देखता हूँ। मुझे लगता है शायद सेमेस्टर 6 में ग्रीन केमिस्ट्री है और कोई ऐसा नहीं है। इसी तरह सेमेस्टर 6 में ही कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन, एनालिटिकल related to the chemistry, but core is missing, sir. If student do not understand the basic, so then वो बाद में समझेगा नहीं। ये सोचता है। ओवरऑल जो अभी तक हमारा 2 दिन का डिस्कशन था उसमें हमें फार्माकोलॉजी के लिए 8 से 10 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स मिल रहे थे। कल हमने फार्मास्यूटिक्स का डिस्कशन किया था, उसमें भी 8 से 10 हमको मिल रहे थे सब्जेक्ट्स जो फार्मास्यूटिक्स की फैकल्टी एज इलेक्टिव पढ़ा सकते हैं। बट केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इलेक्टिव सब्जेक्ट्स का नंबर कम है। हाँ, यस। अगर हम एनालिसिस यदि आप एनालिसिस और इन सबको मिला देंगे तो 6-7 के करीब हो जाते हैं, 6 के करीब। एक सजेशन है कि यदि इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस जो है ना, एक सब्जेक्ट ही एनालिसिस का करें, वो 2 सब्जेक्ट कर दें, और इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस जो एमकॉम का सब्जेक्ट है ना, जो मॉडर्न एनालिटिकल टेक्निक, वो उसको ऑप्शनल रख दें तो वो ज्यादा ठीक रहेगा मेरे ख्याल से। अच्छा सर, एक सजेस्ट ये है। अच्छा फिर एमफॉर्म में क्या पढ़ेगा? यदि मैथ यदि अभी पढ़ा दोगे बच्चे को तो मास्टर्स में क्या पढ़ेगा? तो मेरे हिसाब से मैथ तो मास्टर्स में रहे तो ज्यादा बेहतर है। मतलब बच्चा जो है, देखिए एनएमआर, आईआर, कोई देयर इज नो यूज इन द इंडस्ट्री। मतलब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में तो अनटिल अनलेस एपीआई इंडस्ट्री इज देयर इज नो यूज ऑफ दिस एनएमआर, मास। मतलब ठीक है, बेसिक नॉलेज शुड बी देयर। तो इट इज बेटर कि जो है यहाँ से जो एनालिसिस उन्होंने जो मर्ज किया है, इसको यहाँ से हटा के 5th में करें। 5th वाला जो पूरा का पूरा मटेरियल है उसमें यूबी एचपीएलसी बेसिक डाल दे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा जो है थोड़ा थोड़ा जो 7th सेमेस्टर में था वही रहने दे, वो ज्यादा ठीक रहेगा। आईए में जो सब्जेक्ट है वो ठीक रहेगा सर। ओके, सजेशन है। हाँ, नहीं सही है सर सजेशन, क्योंकि बच्चे को फर्स्ट ईयर में एकदम इतना सारा दे देंगे, मतलब कभी कभी डोज ज्यादा देने से टॉक्सिसिटी होती है। तो 60 आवर्स में भी सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा फर्स्ट ईयर में, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। अभी 60 आवर्स पढ़ाने को नहीं मिलेंगे, वही तो मैं कह रहा हूँ। अभी 45 हाँ 45, लेकिन वो उसमें कंप्लीट नहीं होगा सर। कंप्लीट एक्चुअली सर इन्होंने केवल इम्प्यूर वो थोड़ा सा लिमिट टेस्ट और वो थोड़े से कम किए, बाकी सब एज इट इज है, कहीं कुछ कम नहीं किया, बल्कि उसमें और एड ऑन कर दिया है। जी। इनको इनऑर्गेनिक में केवल इनऑर्गेनिक करें तो ज्यादा बेटर है एनालिसिस को मर्ज करने के। तो वो थोड़ा सा सजेशन है। 2 सब्जेक्ट सेपरेट रखें जैसे पहले थे। हाँ। एनालिसिस 1 था और इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस था। हाँ, वो 2 ठीक है। हाँ, मतलब एक और सब्जेक्ट उन्होंने रखा था, वो इलेक्टिव में रखा था, तो अभी वो इलेक्टिव में कर दें, स्पेशलाइज्ड वाला सब्जेक्ट। हाँ जी। एट लास्ट मुझे लगता है कि हम लोग फिर से, जैसे बार रिक्वेस्ट अभी हुई है कि हम लोग अपने पॉइंट्स रेडी रखें। आई विल शेयर अ गूगल फॉर्म जिसमें केवल 3-4 पॉइंट्स ही भरने के लिए रहेंगे, जिसमें कंसाइज और पॉइंट वाइज किस टॉपिक का किस जगह पर क्या इशू है, हम पॉइंट वाइज सर 5 पॉइंट कम से कम रखिएगा, 4 3 4 मत रखिएगा। 5 पॉइंट तो ऐसे हो बिल्कुल छोटे 5 पॉइंट के सजेशन हो सकता है, कुछ के कॉमन होंगे। मैंने क्वेश्चंस की बात करी कि मैं जो फॉर्म क्रिएट करके हम आपको शेयर करेंगे उसमें केवल एंट्रीज 3-4 ही कॉलम्स आपको भर देंगे। 5 और 6 एंट्री रखना भैया। नहीं आप समझे नहीं, एटलीस्ट 5। आप समझे नहीं। मेरी तरफ से क्वेश्चन ये रहेगा कि सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे आपके कंसर्न्स क्या है, आप 5 लिखिए चाहे 10 लिखिए। सेकंड क्वेश्चन मेरी तरफ से फॉर्म में रहेगा कि ओवरऑल सिलेबस पे आपका कंसर्न क्या है, ये मेरा कहना था। मुझे लगा अपनी जो है कमेंट्स डालने के लिए 4 और 5 ऑप्शन रखेंगे। नहीं, वो फ्री है, हम 10 दे सकते हैं, हम पूरे सिलेबस को रिव्यू करना है सर, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो एक्चुअली क्या ज्यादा लेंथी होता है तो फिर हम फॉर्म्स को हम लोग फिर स्किप करना शुरू करते हैं, बुलेट पॉइंट्स में देंगे, बुलेट पॉइंट्स में देंगे। यस। तो जस्ट कंक्लूड करते हैं। मुझे लगता है आज का अच्छा डिस्कशन रहा है, और एक बार फॉर्म्स के साथ हम सभी फिर दोबारा इस ड्राफ्ट पे फाइनल डिस्कशन करेंगे। यस सर, ठीक है सर। एक बात और मुझे बोलनी थी सर, अभी पता नहीं रिलेवेंट है या नहीं है। एक तो नंबर ऑफ टीचर्स जो इन्होंने कम किए हैं पीसीआई ने, सर उसके लिए बात हुई थी मेरी, सॉरी टू इंटरप्ट,
कि अभी क्या है कि अभी केवल सिलेबस ड्राफ्ट किया है, अभी कैडर रेशियो के बारे में डिसीजन बाद में करेंगे वो। नहीं, इन्होंने बाद में बाईबैक किया ना सर। 22 इन्होंने 9 जनवरी को सर्कुलर निकाला था कि जो 1:20 का रेशियो है, लोगों ने पीसीआई पोर्टल भर लिया, उनको डेफिशिएंसी नहीं आई। अभी बाद में उन्होंने 22 मार्च को एक सर्कुलर, 20 मार्च को एक सर्कुलर निकाला कि यू हैव टू फॉलो द मींस रेगुलेशंस ऑफ द प्रीवियस सर्कुलर 2014। हम 2014 का रेगुलेशन ले रहे हैं तो वो 1:15 का रेशियो है। तो ये एक बड़ी विचित्र बात हो रही है कि 1 मिनट में, मतलब 2 महीने के अंदर इन्होंने वापस से ये कर दिया। और दूसरा मतलब टीचर्स होने ही चाहिए ना, अभी इतने सारे सब्जेक्ट हैं तो 1:20 के रेशियो में नहीं पढ़ाया जा सकता है। अभी सर स्पेशलाइजेशन और कैडर रेशियो दोनों पे उनको दोबारा विचार करना पड़ेगा सिलेबस के साथ। हाँ वही। तो ये मतलब सिलेबस टीचर्स, क्योंकि हमारे जो इन्होंने एनईपी बोला है, तो एनईपी के कुछ पॉइंट्स हैं कि जो टीचर्स हैं उनको मतलब ज्यादा बर्डन नहीं दिया जाए, ये उनको फैसिलिटी दिलाएंगे, हम उनको अपग्रेड करेंगे। बहुत सारे नहीं सर, ये एक सजेशन और, यदि अपग्रेड करें तो एटलीस्ट प्रोफेसर लेवल के जितने भी टीचर्स हैं उनकी जो है एक ट्रेनिंग टाइप का, ये जो कंटिन्यू मेडिकल क्या क्या जो है नए जो है एडवांसमेंट हो रहे हैं, क्योंकि कहीं पे भी जैसे मेडिकल कॉलेजेस में है तो कंपनियां कराती हैं, हमारे यहाँ तो कोई ट्रेनिंग ही नहीं होती। एटलीस्ट फार्मेसी पीसीआई जो है स्पॉन्सर करे, एक फार्मा अन्वेषण हुआ 2023 में, उसके बाद तो कुछ हुआ ही नहीं। मतलब एक गेट टुगेदर या जो है जहाँ पे जो है हम सीख सके, एटलीस्ट हमें भी अपग्रेडेशन की जरूरत है ना सर। ऐसा तो है नहीं कि हम सब सीख के आए हैं। साथ थे तो कम से कम हमें ग्रांट्स मिलती थी, बहुत सारे एफडीपी के लिए ग्रांट्स रहती थी, लेकिन अभी पीसीआई के साथ सब बंद है। हाँ सर, वो मतलब अब एकेटीयू ने भी बंद कर दिया सर। पीसीआई में तो एक और सजेशन है, कम से कम पीसीआई इंस्पेक्टरों को तो गेट टुगेदर कराएं, जो है उनकी कोई ट्रेनिंग कराएं। आपने जो है खाली सिलेक्ट करके छोड़ दिया है भाई। जब तक आप जो है एक बेसिक हर चीज में जब तक आप अपडेट नहीं करते रहेंगे हर चीज में, तब भाई क्रिटिकल कोई भी चीज क्रिस्टल सेंट्रलाइज ना हो तो स्टेट लेवल पे हो जाए। सेंट्रलाइज नहीं कह रहा हूँ कि आप सेंट्रल लेवल पे हम लोग करेंगे कर दीजिए, हम ही लोग कराते हैं। नहीं तो करो, फिर थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन करो सब लोग, और क्या अपना एक काउंसिल चालू कर देते हैं। नहीं तो ठीक है नहीं ठीक है, एसोसिएशन होना चाहिए, एसोसिएशन होना चाहिए। नहीं पीसीआई सेक्टर को ठीक है सर, बहुत अच्छा कर रहा था। चलिए, थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, all the three panelists, for sharing your valuable thoughts and practical insight. Special thanks to Dr. Hemant Kumar Jain sir, Dr. Ishwar Chandgiri sir, Dr. Anurag Mishra sir, and Satyen sir. Thank you Vinay Patak sir, thank you Yadven sir. And एक चीज मैं कहना चाहूंगी, 3 दिन से पैनल डिस्कशन में सुन रही हूँ, एग्जिस्टेंस की लड़ाई हम लोग पिछले 50 साल से कर रहे हैं फार्मासिस्ट फील्ड पे। अभी भी हम लोग तो कंपाउंडर से ज्यादा कुछ नहीं समझते हैं लोग। तो चेंजेस होने चाहिए, चेंजेस बेटरमेंट के लिए हो तो ज्यादा यूजफुल रहेगा, इंस्टेड की केवल प्रेशर क्रिएट करने के लिए या फिर अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए। यहाँ पे टीचर्स जैसे लोग आ गए हैं तो अच्छा है भाई। अभी तक क्या था कि सब सेपरेट था, अभी मंच बन रहा है, कहाँ चलिए इस तरह से कोई भी नई चीज निकल के तभी आएगी जब आप कन्वर्सेशन करेंगे। कोई भी नई चीज तभी आएगी भाई, सब लोग बैठे हुए कोई चीज बता रहा है और कुछ निकल के आएगा ही। तो कल फिर मिलते हैं शाम को 7 बजे अपने अगले नेक्स्ट पैनल डिस्कशन के साथ में, विच इज फॉर द फार्माकोग्नोसिस सिलेबस। Thank you all. Thank you so much. Thank you so much. Thank you all. Thank you, Hemant sir, Anurag sir, Satyen sir. Thank you all of you. Thank you, sir. Thank you.